ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ 7 ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੀ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗਰੁੱਪ 17। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ 17 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਲੋਰੀਨ, ਕਲੋਰੀਨ, ਬ੍ਰੋਮੀਨ, ਆਇਓਡੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ 17 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਦੇ ਇੰਟਰ ਹੈਲੋਜਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹੈਲੋਜਨਸ ਦਾ ਹੈਲੋਜਨਸ ਨਾਲ ਹੀ ਬੌਂਡ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਟਰ ਹੈਲੋਜਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਬੇਟਾ ਹੈਲੋਜਨਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਸਿਊਡੋ ਹੈਲੋਜਨਸ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 88। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ, ਵਟ ਆਰ ਸਿਊਡੋ ਹੈਲੋਜਨਸ? ਵਟ ਆਰ pseudo what are pseudo halogens? what are pseudo halogens? pseudo halogens ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? give example। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਪੁੱਤਰ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ pseudo ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗਾ। pseudo, ਠੀਕ ਹੈ, pseudo ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵਰਡ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, pseudopodia ਅਮੀਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। pseudo ਵਰਡ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫਾਲਸ। pseudo ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ? ਫਾਲਸ। ਤਾਂ ਹੈਲੋਜਨਸ, ਹੈਲੋਜਨਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੈਲੋਜਨਸ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਗਰੁੱਪ 17 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਲੋਜਨਸ ਮੀਨਸ ਗਰੁੱਪ 17 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਮੀਨਸ ਫਲੋਰੀਨ, ਕਲੋਰੀਨ, ਬ੍ਰੋਮੀਨ, ਆਇਓਡੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਨੇਗੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲੋਜਨਸ ਲਾਈਕ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈਲੋਜਨਸ ਲਾਈਕ ਹੀ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲੋਜਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਲਾਈਕ ਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਇਨਾਈਡ, CN ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਵਾਂਗ ਨੇ? ਕਲੋਰਾਈਡ ਵਾਂਗ। ਹੁਣ ਕਲੋਰਾਈਡ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੈਲੋਜਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੇਮ ਜਿਵੇਂ ਸਾਇਨਾਈਡ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਆ, ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਅਟੈਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਆ ਗਿਆ, ਬੈਸਟ ਲਿਵਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਾਇਨਾਈਡ ਦੀਆਂ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਹੈਲੋਜਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਲੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਇਨਾਈਡ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਸਿਊਡੋ ਹੈਲੋਜਨ। ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਬੇਟਾ? ਸਿਊਡੋ ਹੈਲੋਜਨ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਆਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਸਾਇਨਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਊਡੋ ਹੈਲੋਜਨਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਟ ਬਿਹੇਵਸ ਲਾਈਕ ਅ ਹੈਲੋਜਨਸ ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਹੈਲੋਜਨਸ। ਹੈਲੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਬਟ ਹੈਲੋਜਨਸ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਊਡੋ ਹੈਲੋਜਨਸ ਕਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੇਮ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਕੇ Cl2 ਮਤਲਬ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਬੇਟਾ Cn ਟਵਾਈਸ ਮੀਨਸ ਸਾਈਨੋਜਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ, ਸਾਈਨੋਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਥਾਇਓਸਾਈਨੋਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥਾਇਓਸਾਇਨਾਈਡ, SCN ਨੈਗੇਟਿਵ। SCN ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਥਾਇਓਸਾਇਨਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥਾਇਓਸਾਇਨਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ Cl2 ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੇਮ SCN ਟਵਾਈਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਸ ਥਾਇਓਸਾਈਨੋਜਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥਾਇਓਸਾਈਨੋਜਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਇਨਾਈਡ, ਇੱਕ ਥਾਇਓਸਾਇਨਾਈਡ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇ? ਹੈਲੋਜਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਮੈਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੈਲੋਜਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਸਿਊਡੋ ਹੈਲੋਜਨਸ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 88 ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 89। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 89 ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝੋ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਇਨਥੈਲਪੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਇਨਥੈਲਪੀ ਆਫ fluorine, electron gain enthalpy of fluorine is less negative than that of chlorine, than that of chlorine, although it has small size, although it has ਸਮੋਲ ਸਾਈਜ਼। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਇਨਥੈਲਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਇਨਥੈਲਪੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਇਨਥੈਲਪੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਟਮ ਪਿਆ ਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਐਟਮ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ? ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਿੰਗਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਗੈਸਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਟਮ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਤੇ ਗੈਸਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਂਟਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਤੇ ਗੈਸਸ ਸਟੇਟ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਂਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਚਾਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ?
इलैक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलैक्ट्रॉन गेन तो समझते हो ना, गेन मतलब इलैक्ट्रॉन देना एटम नूं, इलैक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो इलैक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की हुंदी हैगी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एंटर एन इलैक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड गैस स्टेट एटम। ओके, तो हम देखो ਆਪਾਂ ਨੇ किस दी इलैक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मैच करनी है बेटा, इत्थे एक फ्लोरीन दी ते नैक्सट की हैगा अपने कोल इत्थे क्लोरीन। ठीक है, एक फ्लोरीन है ते नैक्सट की है इत्थे अपने कोल क्लोरीन। ठीक है जी, तो फ्लोरीन ते क्लो चलो जी हुण आपां गल करते हैं फ्लोरीन ते क्लोरीन दी इलैक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बारे। ठीक है, फ्लोरीन दी इलैक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की कह रहे हैं बेटा, लैस नैगेटिव। लैस नैगेटिव का मतलब भी यह इलैक्ट्रॉन नूं छेती असैप्ट नहीं कर सकता, घट एनर्जी रिलीज होंदी है इस केस दे विच। क्लोरीन के केस दे विच की होया, क्लोरीन मतलब ये छेती इलैक्ट्रॉन नूं असैप्ट कर लैंदा। हुण देखो बेटा, फस्ट ऑफ ऑल अपने कोल फ्लोरीन आ ते क्लोरीन आ, आपां नूं एक चीज़ तो क्लीयर है कि टॉप टू बॉटम साइज की हुंदा, इंक्रीज हुंदा। ठीक है जी, फस्ट केस आप लैके जाने बेटा, इत्थे आप दो केस बनाने, पहला केस की किहड़ा लैने आप इत्थे फ्लोरीन का केस। ठीक है, तो फ्लोरीन के केस दे विच देखो बेटा, फस्ट ऑफ ऑल फ्लोरीन, ठीक है, इसका इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की हुंदी है 2s2 2p5। ठीक है, इन केस ऑफ क्लोरीन इहदी इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की हुंदी है 3s2 3p5। ठीक है जी, हुण फ्लोरीन के केस में अपने को किहड़े शैल ने, सेंटर के न्यूक्लियस होगा बेटा 1s 2s शैल होना, दैन उस तो बाद किहड़ा शैल आ जाऊगा अपने को 2p शैल। ठीक है, तो हुण 2s को 2 इलैक्ट्रॉन्स पे ने, तो 2p को अपने को 5 इलैक्ट्रॉन्स पे ने। ठीक है, नैक्सट अपने इस एक इनकमिंग इलैक्ट्रॉन की करवाना, एंटर करवाना। ठीक है, हुण समझो ध्यान दे नाल इत्थे कि अपने को ऑलरेडी जो 2p शैल आ समॉल शैल आ। ठीक है, साइज छोटा अपने को फ्लोरीन का, तो आप एक की कर रहे हैं, इनकमिंग इलैक्ट्रॉन इस एंटर करवा रहे हैं। ठीक है, अगर आप इस इलैक्ट्रॉन पहली ऑलरेडी कंजस्टड फॉर्म के इलैक्ट्रॉन्स पे ने, तो आप एक इलैक्ट्रॉन होर एंटर करवा रहे हैं, तो जो इनकमिंग इलैक्ट्रॉन आ, ठीक है, वह रिपल्शन फील करूगा, तो आ वाले इलैक्ट्रॉन्स ये इलैक्ट्रॉन एंटर नहीं होने देंगे बिकॉज ऑफ इट्स समॉल साइज एंड हाई इंटर इलैक्ट्रॉनिक रिपल्शनस। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स small size and high inter electronic repulsions ठीक है, तो इस केस के जो इनकमिंग इलैक्ट्रॉन वो छेती एंटर नहीं हो सकता। ठीक है, तो जिदे करके इत्थे एनर्जी घट रिलीज होनी, तो इसकी लैस नैगेटिव इलैक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होनी है किसकी, फ्लोरीन की। बट इन केस ऑफ क्लोरीन, हुण क्लोरीन के केस की आ रहा बेटा अपने को 3s2 3p5 इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। फस्ट अपने को 1s शैल आ गया, 2s शैल आ गया, दैन उस बाद 2p शैल आ गया। ठीक है बेटा, दैन 3s शैल आ गया, नैक्सट अपने को आ गया 3p शैल आ गया। ठीक है, तो हम 3s के कोल 2 इलैक्ट्रॉन्स पे ने, 3p कोल किन्ने इलैक्ट्रॉन्स पे ने पुत्र जी, अपने को इत्थे 5 इलैक्ट्रॉन्स। ठीक है, हुण इस दे विच भी आपां ने इनकमिंग इलैक्ट्रॉन नूं की करवाउणा, एंटर करवाउणा। हुण देखो इलैक्ट्रॉन तो दोवां दे कोल किन्ने ने बेटा, इस दे कोल भी 7 इलैक्ट्रॉन ने, इलैक्ट्रॉन इन्हें भी एक्सैप्ट करना, 7 इलैक्ट्रॉन इस दे कोल ने, इलैक्ट्रॉन इन्हें भी एक्सैप्ट करना, क्योंकि 1 इलैक्ट्रॉन गेन करन दे नाल इन्हां दा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाऊगा। बट इन केस ऑफ क्लोरीन के केस दे विच की होना कि क्लोरीन का साइज वड्डा होने करके, ठीक है, ये बहुत जल्दी एक इलैक्ट्रॉन नूं एक्सैप्ट कर लूगा, क्योंकि इसके कोल की पई है, स्पेस पई है। ठीक है, तो अगर इसका साइज वड्डा तो इलैक्ट्रॉन छेती एंटर करूगा, अगर इलैक्ट्रॉन छेती एंटर कर गया तो इसकी इलैक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज़्यादा रिलीज होनी है, मीनस मोर नैगेटिव होनी है इत्थे इलैक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक है, तो इत्थे कि आपां की कहांगे, अकॉर्डिंग टू द साइज। ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग इट हैज़ मीनस इसका लार्ज साइज हुंदा, लार्ज साइज होने करके लैस इंटर इलैक्ट्रॉनिक रिपल्शनस, लैस इंटर इलैक्ट्रॉनिक रिपल्शनस। दैट्स वाई द इलैक्ट्रॉनिक रिपल्शनस घट होने करके इस इलैक्ट्रॉन बहुत छेती एंटर कर जाना, अगर जल्दी एंटर कर गया तो इस इलैक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की होनी है ज़्यादा नैगेटिव, इस इलैक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की होनी है लैस नैगेटिव। ओके बेटा, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलैक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी फ्लोरीन ते क्लोरीन का केस। ठीक है, +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗਾ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नैक्सट आप क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 हुण क्वेश्चन की है बेटा अपने को नैक्सट क्वेश्चन देखो, फ्लोरीन ते क्लोरीन का ही केस आप यही क्वेश्चन के बेसिस उत्ते आप क्वेश्चन लैके जा रहे हैं कि फ्लोरीन इज़ पावरफुल, फ्लोरीन इज़ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फ्लोरीन इज़ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैन क्लोरीन। ठीक है, तो हुण समझो इत्थे क्वेश्चन ध्यान नाल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी रहे, बहुत बार रिपीट हो चुके हैं।
देखो फ्लोरीन इज़ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हुण समझो रजे ध्यान नाल कि फ्लोरीन है जिहड़ा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है किहदे कंपैरिजन क्लोरीन दे कंपैरिजन। हुण देखो एक चीज़ तुहानूं पता कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दा मतलब की हुंदा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहला भी आपां बहुत क्वेश्चन कर चुके इहदे नाल रिलेटेड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीनस मैं तुहानूं समझाया सीगा कि ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीनस की होया रिडक्शन। रिडक्शन मीनस की होया बेटा अपने कोल इत्थे गेन ऑफ इलैक्ट्रॉन्स गेन ऑफ इलैक्ट्रॉन्स ठीक है। तो हुण देखो ये की कह रहे हैं कि जिहड़ा फ्लोरीन आ वो एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ। तो अल्टीमेटली मैं ये गल कह सकती हाँ ना कि अगर फ्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ तो इट मीनस ये इलैक्ट्रॉन नूं बहुत छेती की कर सकदा गेन कर सकदा किहदे कंपैरिजन क्लोरीन दे कंपैरिजन ठीक है जी। तो समझो बेटा इत्थे ध्यान नाल देखो फ्लोरीन अगर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ तो इट मीनस इट गेन्स फास्ट इलैक्ट्रॉन इट गेन्स फास्ट इलैक्ट्रॉन ठीक है। तो यह इलैक्ट्रॉन नूं छेती असैप्ट कर सकदा एज कंपेयर टू द क्लोरीन। पर जे हुण आपां पिछला क्वेश्चन देखिए पिछला क्वेश्चन ते अगर आपां 89 नंबर क्वेश्चन देखिए तो मैं उत्थे तुहानूं की समझाया सीगा कि फ्लोरीन छेती इलैक्ट्रॉन गेन नहीं करता जी क्योंकि इहदा साइज छोटा होने करके इत्थे इंटर इलैक्ट्रॉनिक रिपल्शनस हो जांदियां ने तां करके फ्लोरीन इलैक्ट्रॉन नूं जल्दी गेन नहीं कर सकदा किहदे कंपैरिजन एज कंपेयर टू द क्लोरीन क्योंकि क्लोरीन का साइज की हुंदा वड्डा हुंदा ठीक है। तो हुण बट आपां जे ये क्वेश्चन चैक करिए तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो मीनिंग अपना यही निकल रहा कि फ्लोरीन है जिहड़ा इलैक्ट्रॉन नूं छेती असैप्ट करे तां ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होया ठीक है। हुण समझो बेटा ये पिछे कहानी की हैगी नो डाउट कि अपने कोल जिहड़ा फ्लोरीन आ इहदी इलैक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की है लैस आ किहदे कंपैरिजन क्लोरीन दे कंपैरिजन ठीक है। बट फ्लोरीन की होया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होया ठीक है। हुण समझो इलैक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ते ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो अपने कोल अलग अलग कंसैप्ट ने। हुण जिहड़ी इलैक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आ बेटा इलैक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सिर्फ किहदा केस हुंदी आ इलैक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सिर्फ आपां कदों इनू कैलकुलेट कर सकते हैं इलैक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नूं कि जदों अपने कोल कोई भी एटम आइसोलेटेड स्टेट दे विच होवे मीनस सिंगल होवे ते नाल गैस स्टेट दे विच होवे उदों ही आपां किसी भी एटम दी इलैक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नूं कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है। पर जिहड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जां ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर आ ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर ठीक है ये ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर ये नहीं हैगा बेटा कि पूरे का पूरा इलैक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ते डिपेंड करता। ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर जिहड़ा किसी भी मॉलीक्यूल दा एक्चुअली ये 3 स्टैप उत्ते डिपेंड करता। इट डिपेंड्स अपॉन द 3 स्टैप्स इट डिपेंड्स अपॉन द 3 स्टैप्स ठीक है। मीनस अकॉर्डिंग टू द बॉर्न हैबर साइकिल किहदे अकॉर्डिंग बॉर्न हैबर साइकिल दे अकॉर्डिंग बॉर्न हैबर साइकिल दे अकॉर्डिंग आपां इत्थे पहलां बॉर्न हैबर साइकिल दे अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करांगे भी कोई भी मॉलीक्यूल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किवें बनता ठीक है। तो ये टोटल 3 स्टैप होंदे ने। सब तो पहले आप डिस्कस करते बेटा इसका फस्ट स्टैप हुण फस्ट स्टैप के केस दे विच देखो कि अपने कोल फस्ट ऑफ ऑल कोई भी मॉलीक्यूल है जो आप किसी भी मॉलीक्यूल में इलैक्ट्रॉन देना कि वह आइसोलेटेड होना चाहिए तो गैस स्टेट के होना चाहिए ठीक है। कि इत्थे अपने को जिहड़े हैलोजन्स ने ज़्यादातर मॉलीक्यूल फॉर्म के एग्जिस्ट करते हैं। पहला आप मॉलीक्यूल्स तो की बना लांगे बेटा इन्हां दे एटम्स बना लांगे ठीक है। ये अपने को क्या आ गया एटम आ गया। जो आप मॉलीक्यूल नूं एटम दे विच कन्वर्ट कर रहे हैं तो यदा मतलब की होया भी आप इत्थे एक्स एक्स बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं ठीक है। एक्स एक्स बॉन्ड ब्रेक किया तो इत्थे एनर्जी किहड़ी रिलीज होनी आ बॉन्ड डिसोसीएशन एनर्जी बॉन्ड डिसोसीएशन एनर्जी बॉन्ड डिसोसीएशन एनर्जी ठीक है। हुण सैकेंड स्टैप दे विच ये एटम मेरे को सिंगल आ जी गैस स्टेट दे विच आइसोलेटेड पिया ते गैस स्टेट दे विच पिया। हुण ये एटम इलैक्ट्रॉन नूं असैप्ट कर सकदा जदों एटम ने इलैक्ट्रॉन नूं असैप्ट किया तो इस दे उपर किहड़ा चार्ज आ गया नैगेटिव चार्ज। तो इत्थे अपने कोल किहड़ी एनर्जी लगनी है बेटा इलैक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इलैक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इलैक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ठीक है। तो दैन उस बाद थर्ड स्टैप के होंगे बेटा जो कोई भी एटम आइसोलेटेड गैस स्टेट के इलैक्ट्रॉन असैप्ट कर लैंदा तो नाल दी नाल मॉइस्चर नूं अब्सॉर्ब करूगा ठीक है। तो किस दे विच कन्वर्ट हो जाना बेटा इत्थे अपने कोले एक्स फॉर्म दे विच एक्स फॉर्म दे विच। तो इत्थे किहड़ी एनर्जी रिलीज होनी आ हाइड्रेशन एनर्जी हाइड्रेशन हाइड्रेशन एनर्जी। तो ओवरऑल जिहड़ा ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर आ वो किसी भी मॉलीक्यूल का 3 स्टैप के उत्ते डिपेंड करता। पहला बॉन्ड डिसोसीएशन दूजा इलैक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ते तीजा हाइड्रेशन इंथैल्पी। हुण आपां इन केस ऑफ फ्लोरीन लैके चलते हैं। फ्लोरीन के केस दे विच देखो फ्लोरीन के केस दे विच पहला स्टैप अगर आपां गल करिए फस्ट स्टैप की
ठीक है। तो इस फ्लोरीन फ्लोरीन का जोड़ा बॉन्ड होंगे बहुत ही ईजी ब्रेक हो जाता, ठीक है। पहला भी आप कर चुके हैं कि इसकी बॉन्ड डिसोसीएशन एनर्जी बहुत घट होंगी है, दैट इज़ ओनली 155 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो इन्नी घट बॉन्ड एनर्जी होंगी है कि बेटा फ्लोरीन ते इन कंपैरिजन ऑफ द क्लोरीन, ठीक है। अगर आप क्लोरीन का पहला स्टैप लैके चलीए तो क्लोरीन क्लोरीन की जी बॉन्ड डिसोसीएशन एनर्जी होंगी है ज़्यादा होंगी है, क्योंकि इसका साइज़ की होंगे लार्ज होंगे, ठीक है। फ्लोरीन का साइज छोटा होने करके, हाई इलैक्ट्रॉन एक्टिविटी होने करके, इंटर इलैक्ट्रॉनिक रिपल्शनस ज़्यादा होने करके ये बॉन्ड बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता। तो फ्लोरीन के केस ये स्टैप फास्ट होगा, क्लोरीन के केस स्टैप की होगा स्लो होगा, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर तिन्ने स्टैप उत्ते डिपेंड करता। पहला स्टैप आप गल कर रहे हैं कि फ्लोरीन का पहला स्टैप फास्ट है, क्लोरीन का पहला स्टैप की है जी स्लो आ, ठीक है। सैकेंड स्टैप की गल करते हैं बेटा, सैकेंड स्टैप अपने को की है इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फ्लोरीन इसने एक इलैक्ट्रॉन एक्सैप्ट किया, ठीक है, तो एफ नैगेटिव के कन्वर्ट हो गया। तो सैकेंड इसका आप स्टैप गल करिए तो क्लोरीन, ठीक है, इसने अपने को एक इलैक्ट्रॉन एक्सैप्ट किया तो किस कन्वर्ट हो गया Cl नैगेटिव। हुण एक चीज़ अपन पता कि फ्लोरीन की इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की है लैस नैगेटिव। तो दूजा स्टैप सीगा जिहड़ा इन केस ऑफ फ्लोरीन की होया स्लो होया, फ्लोरीन के केस सैकेंड स्टैप की होया बेटा स्लो होया। तो क्लोरीन का अपन पता कि इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की होंगी मोर नैगेटिव, मीनस क्लोरीन के केस स्टैप की होया फास्ट होया, ठीक है। हुण फस्ट स्टैप फ्लोरीन का की होया फास्ट, तो फ्लोरीन का सैकेंड स्टैप की हो गया स्लो, ठीक है। क्लोरीन का फस्ट स्टैप की होया बेटा स्लो, तो क्लोरीन का सैकेंड स्टैप की हो गया फास्ट। मीनस इत्थे तो जोड़े दोवें स्टैप सीगे, ठीक है, दोवें आपस दे विच की हो गए, मतलब आप की कह सकते हैं कि जोड़े दोवें स्टैप ने आपस दे विच सेम हो गए, ठीक है, कि उसका पहला स्टैप फास्ट है तो क्लोरीन का दूसरा स्टैप फास्ट है, ठीक है। बट हुण आप गल करते हैं थर्ड स्टैप की। थर्ड स्टैप के केसिस दे विच देखो फ्लोरीन का साइज स्मॉल आ, ठीक है, हाइड्रेशन एंथैल्पी वाला ना। हुण जिन्ना पुत्तर जी किसी एटम का साइज छोटा हुंदा उन्ने उस दे नाल वाटर के मॉलीक्यूल अटैच हो जाते हैं, जिन्ने उस दे नाल वाटर के मॉलीक्यूल अटैच होणगे उन्नी ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलती है, ठीक है, मतलब उन्नी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो इस केस के विच इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी की होंदी है ज़्यादा होंदी है, फास्ट होंदी है फ्लोरीन के केस के विच। पर जे आप क्लोरीन की गल करिए तो इत्थे अपने कोले क्लोरीन का साइज़ की हैगा वड्डा, साइज़ वड्डा होने करके इत्थे वाटर के मॉलीक्यूल्स इस दे नाल घट अटैच होंदे ने, हाइड्रेशन एंथैल्पी हमेशा घट होंदी है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी साइज़ वड्डा हुंदा तो वाटर के मॉलीक्यूल घट अटैच होंदे ने। अगर ज़्यादा अटैच हो गए तो मॉलीक्यूल बहुत बल्की हो जाता, तो इन्ना बल्की मॉलीक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, तां करके ऑलरेडी वड्डे साइज़ वाले मॉलीक्यूल दे नाल वाटर के मॉलीक्यूल्स घट अटैच होंदे ने। तो जिन्ने मॉलीक्यूल वाटर के घट अटैच होणगे उन्नी एनर्जी घट रिलीज होनी है, ठीक है। तो इस केस के अपने को की होना बेटा क्लोरीन का साइज़ वड्डा होने करके हाइड्रेशन एंथैल्पी की होनी है घट रिलीज होनी है, ठीक है। तो हुण आपां कंपैरिजन करते दोनों के केस विच। इन केस ऑफ फ्लोरीन फस्ट स्टैप इज़ फास्ट, सैकेंड स्टैप इज़ स्लो, थर्ड स्टैप के इन्नी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होंगी है कि सैकेंड स्टैप के नाल कंपनसेट कर सकती है फ्लोरीन के केस के विच, ठीक है। तो तिन्ने स्टैप का आप जो नैट रिजल्ट देखिए तो फ्लोरीन के केस के तिन्ने स्टैप के जी एनर्जी होंगी है ज़्यादा होंगी है, तां करके फ्लोरीन की है एक स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू द क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन का फस्ट स्टैप भी स्लो है, थर्ड स्टैप भी स्लो है, ठीक है, मीनस इत्थे भी हाइड्रेशन एनर्जी घट निकलती है, ठीक है। तो आप जे ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर देखिए तो क्लोरीन की है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फ्लोरीन की है स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर मैं तो इन्होंने दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन समझावा रहे तो कंबाइंड क्वेश्चन की फॉर्म के देखो तो इसका फस्ट क्वेश्चन नंबर 88 ते 89 दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन भी बन के आता होंगे एग्जाम के, ठीक है। तो कंबाइंड क्वेश्चन देखो बेटा, आप इन्होंने दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन की है जी अपने को इत्थे कंबाइंड क्वेश्चन इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलैक्ट्रॉन, वैसे मैं क्वेश्चन कोई नंबर नहीं दे रही है क्योंकि ऑलरेडी मैं तो उन्होंने क्वेश्चन करवा चुकी हाँ, बस दोवें क्वेश्चन उन्होंने कंबाइन करके दस रही हूँ बेटा। को इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन, इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज़ लेस नेगेटिव, इज़ लेस नेगेटिव देन दैट ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन though it is powerful oxidizing agent, though it is powerful oxidizing agent, powerful oxidizing agent, ठीक है। ये क्वेश्चन बन के आ सकता है बेटा, ये क्वेश्चन जो लास्ट वाले दो क्वेश्चन करवाए उन्होंने दोनों कंबाइन करके आ सकता, ठीक है जी। आंसर दोवों का सेम रहूगा, वो क्वेश्चन का पहला आंसर तुम दसोगे, फिर उस तो बाद बॉर्न हैबर साइकिल के थ्रू दसोगे, क्लीयर है बेटा। तो अपने को इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने, तो ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर देख अपने सीडो हैलोजेंस वाले किया क्वेश्चन को अच्छी तरह ध्यान चंगी तरह रीड करके प्रॉपर नोट्स बनाने ने। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू बेटा।